All right, guys. Can you hear me? Am I audible? Yes, sir. All right. So starting in 3 minutes, inshallah. Walaikum assalam, beta. Okay, ji. So we are starting in 2 minutes, inshallah. All right, ji. Let's begin. So I'm starting the screen sharing. Okay, so I hope my screen is visible. So I'm letting you know the answers for the assignment which I gave. Started business with 15,000 in the bank, so bank will be debited and capital will be credited. Okay. So bought office machinery by check. So office machinery will be debited and bank will be credited. Again, office machinery will be debited and trees limited will be credited. Van will be debited and bank will be credited. Do not use the word check,
but always use the word bank. Number 8, office furniture will be credited and D. Twig and Sons will be debited. Paid the amount owing to Trees Limited. So we have made the payment. So bank will be credited and Trees Limited will be debited. Then cash will be debited and D. Twig and Sons will be credited. Machinery will be debited and bank will be credited. So I'm giving you 1 minute to check your answers. And if you have any questions, please ask me right away. All right, the topic is double entry. So beta, I'm giving you 1 minute, just quickly check it with your solution. And if there is any issue, then please ask me right away. All good? Great, Zabardast. Okay, so if somebody can share the screenshot on the group. Can someone please share the screenshot on the group? Thank you. All right, great. All right, guys, so 2.4. So cash will be debited and capital will be credited. Bank will be debited and cash will be credited. Office furniture will be debited. Dream Limited will be credited. Van will be debited and bank will be credited. Equipment will be debited. P.S. and Sons will be credited. Dream Limited will be debited. Office furniture will be credited. Cash will be debited and equipment will be credited. Dream Limited will be debited and bank will be credited. Cash will be debited and bank will be credited. Bank will be debited and loan account, loan from F Brown will be credited. So I'm giving you 1 minute to check with your answers. And don't hesitate to ask anything better which you have not understood. All good. If your mic is not working, you may use the chat option to ask your questions. Okay, all good, बच्चों. Any issues? Okay, so in 2.3, please explain 8 and 15. Okay, Manu, अभी करता हूँ बेटा. Abdul Hai, sir, last part में just F Brown credit कर रहे हैं. Is it okay? हाँ, F Brown सही है, लेकिन जरा अकाउंट का नाम प्रॉपर कर दो. Loan from F Brown. Mohammed Haseen said all correct. Shabash. Mohit, all correct. Good.
अब्दुल हई ऑल करेक्ट, शाबाश, जबरदस्त बच्चों, वेरी गुड। महानूर, हारिस ग्रेट, माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके महानूर बेटा, 2.3 में आपने क्या एक्सप्लेन, 8 एंड 15। 2.3 में 8 एंड 15, सो 8। सो महानूर, वी हैव सोल्ड ऑफिस फर्नीचर, सो एसेट डिक्रीज हो गया, तो एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, हमने क्रेडिट पे बेचा है तो ये रिसीवेबल है, डी ट्विग एंड सन्स, तो ये रिसीवेबल बीइंग एन एसेट बढ़ रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। सो 8 आपने पूछा, और आपने क्या पूछा, 15 भी, गुड। एंड 15 में बेटा, पेड द अमाउंट ओइंग टू ड्रीज लिमिटेड बाय चेक, तो चेक से हमने पेमेंट करी है तो एसेट डिक्रीज हो गया, सो बैंक क्रेडिट हो गया बेटा। और ट्रीज लिमिटेड को पे ऑफ कर दिया तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ट्रीज लिमिटेड विल बी डेबिटेड। ग्रेट, दानिश का भी सही है सारा, शाबाश, वेलकम बेटा। जी बच्चों, एनी फर्दर क्वेश्चंस बिफोर आई मूव ऑन? अच्छा, अब बेटा साइंस स्टूडेंट्स को भी देखो करना आ गया है, एरर्स कुछ इक्का दुक्का ही निकल रही है, जिसकी निकल रही है, वरना सारा सही हो रहा है। अब बेटा सारी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बार बार इसको सवालात को करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो जाए कि जिस तरह 2+2 अगर हमसे कोई सोचे तो हम फिंगरप्रिंट फिंगर्स के ऊपर काउंट नहीं करते, उसको फिंगर टिप्स पर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी करे, इसको इतनी दफा करे कि आपका ये परफेक्ट हो जाए। इधर आप ट्रांजैक्शन पढ़े और फुल स्टॉप पे पहुंचने से पहले पहले आपको डबल एंट्री पता हो, ये स्पीड आनी चाहिए। ओके भाई, लेट्स मूव ऑन। 2.5 का सॉल्यूशन देने लगा हूं बेटा। स्टार्टेड बिजनेस विद 16,000 इन द बैंक, सो बैंक डेबिट हो गया, और कैपिटल आपका क्रेडिट हो गया। बॉट वैन पेइंग बाय चेक, वैन डेबिट हो गया, और बैंक आपका क्रेडिट हो गया। ऑफिस फिक्चर्स 5 में डेबिट हो गया, और ओल्ड लिमिटेड लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो गया। वैन डेबिट हो गया, कार्टन कार्स क्रेडिट हो गया। टुक 180 आउट ऑफ द बैंक, कैश आपका डेबिट हो गया और बैंक आपका क्रेडिट हो गया। ऑफिस फिक्चर्स डेबिट हो गया और कैश आपका क्रेडिट हो गया। कार्टन कार्स डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। कैश आपका डेबिट हो गया और लोन अकाउंट क्रेडिट, लोन फ्रॉम बीबेरी। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, ऑफिस फिक्चर्स डेबिट, बैंक क्रेडिट। ओके, अब बेटा ये 2.4 और 5 का भी स्क्रीनशॉट जरा ग्रुप पे शेयर कर दें, और 2.5 के भी सॉल्यूशंस मैच कर ले बेटा अपने आंसर्स के साथ। और अगर किसी किस्म का कोई भी इशू है तो आप मुझसे दोबारा पूछ ले। ओके गाइस, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू चेक योर आंसर्स, कोई मसला है तो पूछ ले बेटा। ऑल करेक्ट, शाबाश हारिस, जबरदस्त, मानूर जबरदस्त, अब्दुल हई गुड, सईदा बतूल शाबाश बेटा, दानिश ग्रेट, हमजा शाबाश, माहिद ऑल करेक्ट, शाबाश, जबरदस्त हो गया भाई, गुड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू 2.6 which is the last exercise, फिर हम कुछ नया सीखेंगे आज इसके बाद। और ओके, सो बैंक डेबिट, capital will be credited. Okay, so bank
again debit, and loan will be credited. Computers will be debited, cash will be credited, display equipment will be debited, clear account limited will be credited, cash will be debited, bank will be credited, loan Blaine's loan account will be debited, and bank will be credited, clear account limited debited, and bank will be credited, loan from B Blaine or B Blaine's loan account debit, and cash will be credited, printer will be debited, and F Jones will be credited. So someone please share the screenshot on the group. ओके जी बेटा, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें. ऑल करेक्ट, शाबाश. मानवुड गॉड, नरमीन शाबाश, हारिस ग्रेट. अब्दुल हई सेस 2.6 का 1 समझाते हैं. ओके 2.6 का 1 बेटा वही जैसे पहले के थे. अच्छा इस पे या तो क्या होगा, कैश भी डेबिट होगा. कैश भी डेबिट हो जाएगा, बैंक भी डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा. ये कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट एंड बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट इस तरह से होगा. हारिस शाबाश, बीन ग्रेट. सईदा बतूल जबरदस्त हो गया. अब्दुल हई जी 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 दोनों डेबिट हो गए जी बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त. ऑलराइट, सो दानिश जबरदस्त, ग्रेट हो गया. सो साइंस स्टूडेंट्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रहे हैं. बिल्कुल समझ आ रहा है उनको, कोई मसला नहीं आ रहा है किसी का. सो इन टुडेज क्लास वी विल बी स्टडीइंग सम मोर एंट्रीज. कुछ और मजीद एंट्रीज पढ़ेंगे हम. ओके सो यहाँ पर हम दो चीजें और इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, इनकम और एक्सपेंसेस. आपने कुछ एक्सपेंसेस वगैरह पे किए हैं, फॉर एग्जांपल बिजली का बिल दिया, सैलरीज दिए, रेंट दिया, सो ऑन सो फोर्थ. और इसी तरह आपके पास कोई इनकम आई, फॉर एग्जांपल आपने कोई जगह रेंट पे दी हुई है तो वहां से इनकम आ रही है, सो ऑन सो फोर्थ. तो इनके हम रूल्स पढ़ लेते हैं. याद रखिएगा, इनकम जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी. इसकी लॉजिक क्या है कि इनकम जब बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, और जब प्रॉफिट आपका बढ़ेगा तो आपका कैपिटल भी बढ़ेगा, आपकी वेल्थ बढ़ेगी. सो इंक्रीज इन कैपिटल क्योंकि क्रेडिट होता है, देयरफॉर इंक्रीज इन इनकम का भी सेम इफेक्ट आना चाहिए, दैट इज क्रेडिट. एक्सपेंसेस वाइस वर्सा, जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे वो डेबिट होंगे. क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो प्रॉफिट कम होता है, और जब प्रॉफिट कम होता है तो कैपिटल भी कम होता है. तो डिक्रीज इन कैपिटल क्योंकि डेबिट है, देयरफॉर इंक्रीज इन एक्सपेंस का भी सेम इफेक्ट आना चाहिए, दैट इज डेबिट. जी बेटा, अगर किसी को ये लॉजिक या ये बात समझ में नहीं आई हो तो मुझसे दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन. माइक पे पूछेंगे ज्यादा बेहतर होगा, वरना चैट पे भी देख ले तो अगर किसी का माइक नहीं चल रहा तो. जी 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 ठीक है. सो नाउ कमिंग बैक टू द चैट स्क्रीन. ठीक है ठीक है, दोबारा बताता हूँ. सही है था बतूल बेटा, सही. बतूल आपका माइक चल रहा है? अगर माइक चल रहा है तो बेटा माइक पे आ जाओ, ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा.
Batul, is your mic working? अच्छा ओके ठीक है। अच्छा चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो बतूल, इनकम जब बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, ये बताओ मुझे चैट पे लिख के। बढ़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा जब इनकम बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अच्छा अब अगर आपका बिजनेस हो और आपका प्रॉफिट बढ़ रहा हो, सो यू विल गेट रिचर, राइट? हाउ विल यू गेट रिचर? आपका जो कैपिटल है वो भी बढ़ जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट किए थे 1 लाख, आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो अब आपके 1,10,000 बिजनेस में इन्वेस्टेड है, राइट? तो कैपिटल आपका बढ़ेगा, राइट बतूल? ठीक है। तो इनकम इंक्रीज होने की वजह से आपका कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। सो बतूल, इंक्रीज इन इनकम क्या होता है? सॉरी, इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है बतूल? इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है बेटा? क्रेडिट। तो इंक्रीज इन इनकम का इफेक्ट क्या आ रहा है? इंक्रीज इन कैपिटल। तो अगर इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट है, देयर फॉर इंक्रीज इन इनकम भी क्रेडिट होना चाहिए। जी बेटा, समझ आई ये बात? ठीक हो गया। अच्छा अब बताओ, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? ठीक है, जब प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज इन कैपिटल क्या होता है? डेबिट। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस भी डेबिट होगा, क्योंकि सेम इफेक्ट है वो। ठीक है बेटा? यू वेलकम। और बेटा किसी ने दोबारा पूछना है तो दोबारा पूछ लें। गुड, ठीक हो गया। तो अब हमने ये दो नए रूल्स स्टडी कर लिए हैं, ठीक है? ग्रेट, जबरदस्त। तो हमने ये दो नए रूल्स स्टडी किए हैं बच्चों। अब हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो एक और ट्रांजैक्शन आ रही है हमारे पास, पेड एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस आपको नाम से दिए होंगे, रेंट दिया है, सैलरीज दी है, सो ऑन सो फोर्थ, बाय कैश और चेक। अब आपको इसका कैश और बैंक का इफेक्ट तो पता ही है। कोई साइंस स्टूडेंट मुझे बाइक पे बताएगा कैश और बैंक क्या होगा? बेटा माइक पे, माइक पे। एनी साइंस स्टूडेंट ओवर द माइक? कैश और बैंक क्या होना चाहिए यहाँ पे? Asset? एसेट। एसेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज? डेबिट होगा, क्रेडिट? सर डिक्रीज हो रहा है ना? ठीक है, तो क्या होगा ये? डेबिट या क्रेडिट होगा। क्रेडिट? शाबाश। तो कैश और बैंक क्रेडिट हो जाएगा पहले की तरह जो सीखा है हमने। और खर्चा हमारा हो रहा है, राइट? एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं हमारे, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस हमने अभी पढ़ा क्या होता है? डेबिट हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। सो एक्सपेंसेस जो भी होंगे उनका नाम के साथ वो डेबिट हो जाएगा अकाउंट, और कैश और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो ये होगी इसकी डबल एंट्री। जी बेटा, अगर किसी को दोबारा पूछना है तो मुझसे दोबारा पूछ ले। आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज एट ऑल। ऑल राइट, सो चैट पे भी मैं देख लूं एक दफा। ओके, सो नाउ ठीक है, हमजा दोबारा बताता हूँ बेटा। ठीक है आशिर, दोबारा बता रहा हूँ। जी दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा दोबारा दोबारा। अच्छा ये मुझे बताओ, हमजा और आशिर और
हाँ, हमजा और आशिर। बेटा कैश और बैंक क्रेडिट होगा, ये बात समझ आई या नहीं आई समझ? क्रेडिट वाला तो ये दोबारा बोल बेटा, आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी। ठीक है, आशिर से समझ आ गया। हमजा, ठीक है। कैश और बैंक समझ आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप एक्सपेंसेस पे करोगे तो आप यही बोलोगे ना, खर्चा हो गया मेरा, तो खर्चा बढ़ गया ना, इंक्रीज इन एक्सपेंस। अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो जो भी आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है भाई? जी, समझ आया बेटा? दोबारा बताऊं? क्लियर हो गया हमजा, ठीक है। आशिर, बेटा समझ आया? क्लियर हो गया। जी बेटा, और किसी ने दोबारा पूछ ले तो दोबारा पूछ ले। ऑल गुड, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव्ड इनकम बाय कैश और चेक। ये मुझे कोई साइंस स्टूडेंट बताएगा, ठीक है? कॉमर्स वाला नहीं अभी बताए कोई। साइंस स्टूडेंट कोई माइक पे बताने की कोशिश करे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। सर कैश चेक जो है वो बैंक जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, और रिसीव्ड इनकम है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इनकम क्रेडिट क्यों होगा ये बताओ। सर क्योंकि इनकम हमारे पास आ रही है ना, बढ़ रही है, तो जब बढ़ती है तो हमने रूल पढ़ा हाँ, है कि वो क्रेडिट होता है, इसलिए। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम बेटा? सर महानूर। मानू, वेरी गुड। सो एस मानूर हैज करेक्टली पॉइंटेड आउट, पैसे आ रहे हैं तो कैश और बैंक डेबिट हो जाएगा, और इनकम बढ़ रही है तो इनकम हमारी क्रेडिट हो जाएगी। शाबाश बेटा, वेरी गुड। जी भाई, अगर किसी को बेटा नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है? ये जी बेटा, इनकम का नेम मतलब इनकम देखो बेटा, ये जो लिखा हुआ है ना इनकम के ब्रैकेट में रेंट, अब ये इनकम कोई सी भी इनकम हो सकती है। हो सकता है हमें कमीशन मिला हो सकता है हमने कुछ जगह रेंट पे दी हो तो रेंट मिला हो हमें। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर रेंट लिखा हुआ है। अब इनकम कोई सी भी इनकम हो सकती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे जो आप गुड इनकम सेल टैक्स करी भी है तो तो इनकम होगी। जी दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं बेटा? जैसे इनकम टैक्स भी तो हो सकता है ना। देखो, इनकम टैक्स हमारे लिए क्या इनकम होगी, क्या गवर्नमेंट के लिए इनकम है? वो तो गवर्नमेंट के लिए इनकम है ना। इनकम टैक्स हमारे लिए तो एक्सपेंस होगा। तो ठीक है बेटा? तो इनकम का नाम लिखा हुआ होगा, तो मैंने इसलिए बस नाम जरा इलेबोरेट करने के लिए इनकम की एग्जांपल लिख दी है, रेंट। दिस कुड बी कमीशन रिसीव, दिस कुड बी डिस्काउंट रिसीव, दिस कुड बी सेल्स, कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ इनकम। ठीक है बेटा? यस सर। जी बेटा, और किसी को कुछ पूछना है? बेटा सिंपल सी बात है, जो खर्चा कर रहे हो वो एक्सपेंस है। ठीक है? और जो भी आपको गेन्स वगैरह हो रहे हैं वो आपकी इनकम है। ठीक है? अगर आपने कुछ जगह रेंट पे दी हुई है तो वहां से रेंट मिल रहा है, वो आपकी इनकम है, राइट? इसी तरह अगर आपने कमीशन पे कोई गुड्स बेची है तो वो कमीशन जो आपको मिल रहा है वो आपकी इनकम है। अगर आपके पैसे बैंक में रखे हुए हैं तो जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो आपकी इनकम है। इसी तरह जब आप गुड्स सामान बेच दोगे तो वो सेल जो कर रही है आपने, वो भी आपकी इनकम है। आशिर, समझ आया बेटा? दोबारा बताऊं? तो ओके, ऑल गुड। जी बेटा, और भी किसी ने दोबारा पूछना है तो दोबारा पूछ ले, आई विल एक्सप्लेन अगेन बेटा, नो इश्यूज एट ऑल। ऑल गुड, ऑलराइट। सो एक दफा इसको दोबारा से गो थ्रू कर लें बिफोर वी मूव ऑन। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। दोबारा से ट्रांजैक्शन पढ़ के इसको जरा दोहरा लें जहन में, फिर मैं आगे करवाता हूँ।
ऑलराइट जी. Okay, so I guess no more questions. Let's move on. अच्छा भाई, अब एक और चीज आ रही है आपके पास. गुड्स बॉट बाय चेक, ऑन कैश और ऑन क्रेडिट. अब कोई साइंस स्टूडेंट मुझे जरा क्रेडिट वाली चीजें बता दे कि क्रेडिट क्या होगा. डेबिट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. मुझे बेटा ये बता दो क्रेडिट क्या होगा इसमें. सर बैंक होगा, कैश बैंक. ठीक. ठीक है, कैश बैंक हो सकता है. और अगर क्रेडिट हुआ तो क्या होगा. सर वो अगर क्रेडिट पे है तो सर क्रेडिट पे है तो वो हो गया ना, लाइबिलिटी हुआ ना. लायबिलिटी हो गया, पेबल हो गया. ठीक है. सो लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी तो वो भी आपकी क्रेडिट हो जाएगी. सो आइदर कैश बैंक क्रेडिट होगा, या अगर क्रेडिट पे लिया है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी. ये इफेक्ट हमें ऑलरेडी पता है. अब याद रखिएगा बेटा, एक नई चीज बताने जा रहा हूं. जब भी हम गुड्स बाय करेंगे, गुड्स क्या होती है, जो भी आप सामान खरीदते हैं बेचने के लिए, वो गुड्स हैं. तो फर्नीचर शोरूम के लिए जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो गुड्स है, बिकने के लिए. ठीक है. कार शोरूम में जो गाड़ियां बिकने के लिए खड़ी हैं वो गुड्स है. इम्तियाज सुपर मार्केट में जो भी जनरल आइटम्स बिकने के लिए पड़े हुए वो सारी गुड्स हैं. सो जब भी गुड्स आप बाय करेंगे तो एक परचेजेस का अकाउंट होगा, वो डेबिट होगा. परचेजेस डेबिट होगा. अच्छा, परचेजेस डेबिट क्यों होगा. असल तरीका तो ये देखने का कि परचेज, जब आप सामान खरीदते हो तो ये आपका एक्सपेंस है, और आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है. सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट. बट अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि आपके पास एसेट्स आ रहे हैं, तो एसेट भी आपका बढ़ रहा है, राइट. तो इंक्रीज इन एसेट भी डेबिट होता है. सो देयर फॉर परचेजेस आपका हो जाएगा डेबिट, और कैश और बैंक या पेबल हो जाएगा क्रेडिट. तो ये डेबिट हो गया और ये दोनों आपके क्रेडिट हो गए. जी भाई, अब कोई जरा इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर दे बेटा. एनीबॉडी प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन द ग्रुप. ओके, थैंक यू. ठीक है बेटा. अच्छा, अब अगर बेटा ये वाली 13, नंबर 13 अगर समझ में नहीं आई है तो मुझसे दोबारा पूछ लो. ओके, गुड्स बॉट. ठीक है, बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया बेटा. आशिर, गुड्स बॉट के लिए बस परचेजेस का वर्ड यूज होगा. जी नबी, बिल्कुल ठीक है, शाबाश. सर वो परचेस वाला पॉइंट बता दें. जी जी ठीक है. क्या, सॉरी, क्या कह रहे हैं बेटा, दोबारा बोलिएगा. वो परचेस वाला पॉइंट बता दें, वही 13 वाला. अच्छा, दोबारा बता दो. ओके, सुने, दोबारा सुने भाई. बेटा देखो, जब भी आपने गुड्स बाय करी है ना, जब भी आप गुड्स बाय करोगे तो आपके खर्चा हुआ है, राइट. तो जो भी खर्चा होगा ना, आप गुड्स बॉट का अकाउंट नहीं बोलते, उसका नाम आप रखते हो परचेजेस. अगर आपने कुछ सामान खरीदा है तो बेचने के लिए. अब परचेजेस आपका एक्सपेंस है, जाहिर है आपने गुड्स बाय करी है तो आपका खर्चा हुआ है, राइट, बिजनेस के अंदर. तो इंक्री अब खर्चा हुआ है तो जाहिर है वो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिट. देयरफॉर परचेजेस आपका हमेशा डेबिट डेबिट होगा. होगा. जी. और इसको देखने का एक और तरीका भी है कि गुड्स आपके पास आ रही हैं तो गुड्स आपका एसेट है, तो एसेट भी बढ़ रहा है, राइट. ठीक है बेटा. यस सर. जी बेटा, अगर किसी और साइंस स्टूडेंट को स्पेशली कुछ पूछ रहा हो या इवन कॉमर्स वाले को भी पूछ रहा हो, सो बच्चों, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क. ऑल गुड. आगे चले. ओके. 14, गुड्स रिटर्न बाय अस टू सप्लायर. क्या सोचो होना चाहिए. एनीबडी ओवर द माइक, साइंस वाला कोशिश करे पहले.
गुड्स रिटर्न बाय अस टू सप्लायर। सोचे सोचे, 1 मिनट दे रहा हूँ साइंस वाले बच्चों, सोचो। अकाउंट डेबिटेड होगा। डेबिट क्या होगा पहले बताओ। सर अकाउंट अकाउंट्स व्हाट? पेबल, अकाउंट शाबाश पेबल। शाबाश। ये ऊपर भी हमने पढ़ा था, नॉन करंट एसेट जब रिटर्न कर देते हैं तो उधार पे लिया हुआ सामान जब आपने वापस कर दिया तो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी कम। So, उधार पे लिया हुआ सामान आपने वापस कर दिया तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी वो होगा डेबिट। तो सप्लायर का अकाउंट अकाउंट्स पेबल हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और गुड्स रिटर्न, जो सामान वापस किया है, इसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट का नाम होगा परचेज रिटर्न्स, यानी कि जो परचेज वाला सामान जो वापस हो गया। सो परचेज रिटर्न्स हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा, तो अकाउंट्स पेबल तो वही पुरानी वाली बात, डेबिट हो गया। अब परचेज रिटर्न्स को अब रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं। ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? बिकॉज देखो बेटा, पहले अगर आपने 10,000 की परचेजेस करी थी तो अब आपने अगर 1,000 की वापस कर दी तो असल में आपकी नेट परचेजेस 9,000 हुई। तो अगर आपने पहले 10,000 से एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, अब वो आपका एक्सपेंस कम हो गया 1,000 से, क्योंकि वो सामान आपने वापस कर दिया। और डिक्रीज इन एक्सपेंस आपको पता है हमेशा डेबिट होता है। सो परचेज रिटर्न्स क्या है? एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो रहा है, सो डिक्रीज इन एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। दूसरा तरीका देखने का क्या है कि हमने सब सॉरी, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा। अच्छा, दूसरा तरीका देखने का क्या है कि सामान हमारे पास से जा रहा है तो एसेट हमारे पास से डिक्रीज हो जाएगा। तो जब एसेट डिक्रीज होगा तो तब भी वो क्रेडिट होता है। तो ये एक और आगे डबल एंट्री। जी बेटा, अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई हो तो मुझसे दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ऑल गुड गाइस, कोई मसला? ओके, अब मैं चैट स्क्रीन पे भी आ रहा हूँ। आरएस इज क्लियर, माहिद सेज ऑल गुड। हाँ, आशिर बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, बस परचेजेस को डायरेक्टली हम नहीं क्रेडिट करेंगे, परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट करेंगे और सप्लायर डेबिट करेंगे, बाकी जबरदस्त है। अब्दुल हई ऑल गुड, शाबाश, ग्रेट हो गया। अच्छा, अब एक और आ रही है एंट्री। नंबर 15, गुड्स सोल्ड बाय अस ऑन कैश, चेक और ऑन क्रेडिट। तो इसका आप लोग डेबिट तो आइडेंटिफाई कर लेंगे आराम से, साइंसेस वाले भी। डेबिट क्या होगा बेटा, कौन बताएगा माइक पे? और ये अकाउंट पे रिसीवेबल होगा, अकाउंट रिसीवेबल या फिर कैश होता है। शाबाश। ये इफेक्ट हम पहले भी देख चुके हैं, पैसे आ गए तो कैश बैंक डेबिट, पैसे नहीं आए क्रेडिट पर हमने सेल करी है तो हमें पैसे रिसीव करने हैं तो रिसीवेबल हमारा डेबिट हो जाएगा, एसेट है। सो सिंपल बात है हमारी कि ये वाली चीजें जो डेबिट हो रही है ये तो हमें पता है ये सब एसेट्स है। तो ये एसेट्स आपके इंक्रीज हो गए तो ये हो गया डेबिट। जब भी गुड सेल करेंगे तो एक सेल्स का नया अकाउंट होगा और सेल्स का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। वाई? बिकॉज सेल्स है आपकी इनकम और इनकम इंक्रीज हो रही है, और ऊपर हमने रूल पढ़ा जब भी इनकम इंक्रीज होगी वो होगी क्रेडिट। सो सेल्स आपकी क्रेडिट हो गई, इनकम इंक्रीज हो रही है। एक और तरीका देखने का क्या है कि जब गुड्स आपके पास से जा रही हैं तो एसेट डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट इज ऑल्सो क्रेडिट। लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है कि इनकम से रिलेट करो। तो सेल्स हो गई आपकी क्रेडिट बिकॉज इट इज योर इनकम। जब भी आप गुड्स सेल करेंगे जाहिर है आपको प्रॉफिट होगा, जो आपने सेल करी है जो पैसे आ रहे हैं वो इनकम होगी आपकी।
तो इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज 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 क्रेडिट। तो गुड्स बाय कर रहे हैं तो परचेजेस, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न, गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स। ठीक है, ओके जी। हाँ बेटा, अगर किसी साइंस वाले स्टूडेंट को बेटा कोई चीज नहीं समझ आई है या दोबारा पूछता तो दोबारा पूछ ले, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ऑल गुड, चैट पे आ रहा हूं मैं। ओके, गुड, हो गया, जबरदस्त आशिर। ठीक है बेटा, अब आ रहा है नंबर 16। जी 16 कौन बताएगा? बेटा माइक बंद कर दो, किसी का माइक खुला हुआ है। 16 बेटा। एनी साइंस स्टूडेंट? सोचें थोड़ा क्या होना चाहिए, बताएं मुझे। सारा का गुड्स, रिटर्न हो गए, जी जी बोले बोले। अगर रिटर्न हो गए तो फिर जो गुड्स में वो तो क्रेडिट हो जाएंगे, और जो कैश और है ये सब डेबिट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कस्टमर कस्टमर को हमने सामान रिटर्न, कस्टमर ने हमें सामान रिटर्न किया तो यूजुअली हमने उसको उधार पे बेचा होगा, तो कस्टमर को हमने सामान रिटर्न करा है, तो हमारा जो पेबल, जो सॉरी, जो रिसीवेबल था कस्टमर, अब रिसीवेबल हमारा कम हो गया क्योंकि उसने हमें सामान वापस कर दिया, यानी कि एसेट हमारा डिक्रीज हो गया, तो कस्टमर यानी कि रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट हो जी, और गुड्स रिटर्न टू अस, हमारे पास सामान वापस कैसे आया? जो सामान हमने सेल किया था वही सामान वापस आया है ना, तो जिस तरह परचेज रिटर्न्स थी उसी तरह सेल्स रिटर्न्स। तो सेल्स रिटर्न्स डेबिट हो जाएगा बिकॉज आपकी इनकम जो है अब वो कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल अब ये डेबिट हो जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 की गुड सेल करी थी, तो सेल्स थी आपकी 10,000, अब 1,000 का सामान वापस आ गया, फॉल्टी था या कोई भी रीजन, तो अब आपकी सेल्स 10,000 की नहीं रही, आपकी नेट सेल्स हो गई 9,000, तो आपकी इनकम हो गई कम, और जब भी इनकम डिक्रीज होती है तो जाहिर है वो डेबिट होता है, रूल हमने देखा है ऊपर। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट हो जाएगा, ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेबिट, और रिसीवेबल हो जाएगा आपका क्रेडिट। सर, तो अगर इनकम का अगर डिक्रीज हो गए तो फिर एसेट जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। एसेट एसेट भी डिक्रीज हो रहा है ना बेटा, देखो एसेट रिसीवेबल है, हाँ ये कह सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो आप गुड्स का कह रहे हो, हाँ, तो बेटा देखो गुड्स जब सामान आपके पास आ गया वापस, तो एक और तरीका इसको देखने का क्या है कि जो आपने सेल करी थी अब वो सामान वापस आ गया है, तो जब आपके पास सामान वापस आ गया है तो जाहिर है गुड्स आपके पास आ गई हैं, तो वो एसेट है, तो वो डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप उस तरह भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, इनकम से रिलेट करो। परचेजेस एक्सपेंस है तो वो डेबिट हुआ, परचेज रिटर्न एक्सपेंस कम हो गया तो क्रेडिट हुआ, सेल्स आपकी इनकम है तो क्रेडिट हुई, सेल्स रिटर्न इनकम कम हो जाएगी अब तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। जी बेटा, और किसी को कोई मसला हो तो वो भी पूछ लें। जी शाबाश माहिद, वेरी गुड। जी मानूर, देखो मेमोराइज इस तरह नहीं करनी कि बैठ के आप उसको रट्टा लगा रहे हैं, जब हम अभी मैं मजीद प्रैक्टिस कराऊंगा, जब आप करते रहेंगे ना, आपने सिर्फ रिवाइज कर दी है ये एंट्रीज, जिस तरह आज मैंने ये 7 एंट्रीज बता रहा हूँ, ये 7 एंट्रीज आप बार बार बस रिवाइज करते रहो, ट्रांजैक्शन पढ़ो, सोचो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए कौन सा क्रेडिट, बार बार करके आपको खुद ही याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मानूर 2+2 आपको अब याद हो गया है,
अब अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि 2+2 क्या होता है तो आप फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं करेंगी, आपको वो चीज याद हो गई, क्योंकि मैथ्स आपने इतनी मर्तबा करी है वो कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो गया। ठीक है मानूर, तो इसको भी हमने इतना प्रैक्टिस करेंगे कि वो खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है मानूर, रिपीट कर रहा हूँ मैं बेटा आपके लिए। आशीष है क्लियर, शाबाश, अब्दुल भाई गुड, माहिर ने बिल्कुल सही जवाब दिया, शाबाश। ठीक है महानूर, इज योर माइक वर्किंग? जी सर, इट्स वर्किंग। जी, तो जरा बाइक पे रहिएगा मेरे साथ। 16 ओके समझना है, सर। इससे पहले का तो क्लियर है ना? जी जी सर, क्लियर है। अच्छा, अब देखो हमने जब सेल्स करी थी तो सेल्स हमारी इनकम थी, राइट? तो वो क्रेडिट हुआ। जी और जब सामान कस्टमर ने वापस कर दिया, फॉल्टी था, तो इनकम आपकी खत्म हो गई। जो आपने सेल करी थी अब वो सेल तो नहीं रही ना आपकी, जी, कम हो गई। तो इनकम डिक्रीज हो गई। तो इनकम का जब इंक्रीज क्रेडिट है तो डिक्रीज क्या होगा? डेबिट। डेबिट। तो सेल्स रिटर्न्स का एक नया अकाउंट खोलेंगे, ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स, ये हो जाएगा डेबिट। अब कस्टमर को हमने जनरली हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, तो हमने उसको उधार पे सामान बेचा हुआ था, अब उसने हमें सामान वापस कर दिया, सो नाउ ही ओज अस मोर मनी और लेस मनी, लेस मनी। तो रिसीवेबल कम हो गया, राइट? यस सर। तो रिसीवेबल क्रेडिट ठीक हो है सर, जाएगा। समझ में आ गया मुझे। गुड गुड। थैंक यू सर। जी, योर वेलकम, योर वेलकम। और भी बेटा किसी ने समझना है तो दोबारा समझ लें मुझसे, कोई मसला नहीं है। ओके जी भाई, आगे आते हैं। नंबर 17, आखिरी एंट्री आज की। कैश और चेक और स्टॉक विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यानी कि बिजनेस से अगर ओनर कैश निकाल के घर ले जाए या चेक के थ्रू पैसे घर पे ले जाए, अपने पर्सनल अकाउंट में ले जाए, या फिर कोई और चीज बिजनेस से उठा के ले जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक था वो ले गया। अब इम्तियाज सुपरमार्केट वाले बाहर से थोड़ी सौदा खरीदते होंगे, वो अपनी दुकान से उठा लेते होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपको गाड़ियों का शोरूम है और घर पे आपको नई गाड़ी चाहिए, तो आप उसी शोरूम से आप ले लोगे गाड़ी। ठीक है ना, आप कोई नई गाड़ी बाजार से थोड़ी खरीदोगे। तो आप स्टॉक भी अपने पर्सनल यूज के लिए ले सकते हो। इसी तरह अगर आपका फर्नीचर का शोरूम है तो जाहिर है फर्नीचर भी अगर आपके घर पे चाहिए तो आप अपने फर्नीचर से ही कर लोगे, ना कि आप मार्केट से खरीदोगे। ठीक है बेटा, तो कैश, चेक या जो भी आपने स्टॉक विड्रॉ किया है, तो ये एसेट हो गया डिक्रीज, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। सही है। अब ये जो पर्सनल यूज के लिए चीज गई है ना, इसके लिए आप एक नया अकाउंट खोलेंगे, और वो है ड्राइंग्स का। जो आप पर्सनल यूज के लिए लेते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स आपकी जब बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होगा? कैपिटल आपका कम हो जाएगा, राइट? क्योंकि जितने पैसे आपके बिजनेस पे लगे हुए थे अब वो इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अब क्योंकि डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होता है, इसीलिए इंक्रीज इन ड्राइंग्स भी डेबिट होना चाहिए। सो ड्राइंग्स डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट। और अगर स्टॉक विड्रॉ किया है तो याद रहे स्टॉक गुड्स होती हैं। जब गुड्स बाय करी थी तो आपने ऊपर देखा था 13 में, जब गुड्स बाय करी थी तो परचेजेस डेबिट हुआ था। अब जब वो गुड्स घर लेकर जा रहे हैं, स्टॉक घर लेकर जा रहे हैं, तो परचेजेस ही क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चों, अब बेटा कोई जरा इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर दे पहले। जी भाई, एनीबॉडी प्लीज, थैंक यू। अच्छा बेटा, अब अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज एट ऑल। कोई भी चीज हो बेटा दोबारा पूछ ले। शाबाश, वेरी गुड। कैश, बैंक और परचेजेस भी याद रखना अगर स्टॉक हो। जबरदस्त हो गया आपके भाई, शाबाश। मानो, डिड यू मीन नॉट क्लियर और नो फुल स्टॉप क्लियर सर? क्या मतलब नॉट क्लियर? महानूर बेटा, ओके ओके ठीक है, सही है, गुड हो गया, सही है तब तो।
ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपने करना क्या होगा, ये आपके पास 7 न्यू एंट्रीज आ गई, तो पिछली एंट्रीज भी बार बार रिवाइज करते रहो और ये 7 एंट्रीज भी रिवाइज करो। और साइंसेस और कॉमर्स वाले कम से देखो, अभी कुछ नया एक्सरसाइज ही दे रहा हूं मैं करने के लिए। ये जो 17 एंट्रीज हो गई है, स्पेशली जो आज की 7 एंट्रीज है, ये दिन में 20-30 मरतबा रिवाइज करो बेटा। तो ये 1-1 मिनट के अंदर एंट्री सारी रिवाइज हो जाएंगी। जब 30th टाइम पे आप पहुंचोगे ना, तो खुद ही याद हो चुका होगा जबरदस्त तरीके से। फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा स्पीड आपकी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आज आपका असाइनमेंट ये है कि आपने रिवाइज करना है और इसको एटलीस्ट 20-30 टाइम्स रिवाइज कर लेना है। 30 टाइम्स ध्यान में रखो, उसको रिवाइज कर लो। साइंस वाले हो या कॉमर्स वाले हो, चीते हो क्या आना है एंट्रीज में। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे हम, और फिर हम मजीद आगे चलेंगे। ठीक हो गया बेटा, जबरदस्त, गुड हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जा सकते हो अगर कोई सवाल नहीं है तो। यू वेलकम बेटा। आप लोग जा सकते हैं बेटा, अगर कोई सवाल नहीं है तो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज पानूर। और अगर किसी का कोई सवाल है, अल्लाह हाफिज बेटा वाहिद, अल्लाह हाफिज दानिश। एनी क्वेश्चंस बेटा? ओके, ऑल गुड।